So in this video, we will continue our discussion with a brief history of the virology. So now we will discuss about some of the historical milestones in the field of virology. So simply the viruses were first recognized as a unique infectious entities in the late 19th century. In year 1892, the Dmitry Ivanovsky, a Russian scientist, reported that the tobacco mosaic disease in plants is caused by some filtrable agents. He used a Chamberlain filter to try to isolate the bacteria that cause the tobacco mosaic disease. His experiment showed that the crushed leaf extract from the infected tobacco plant remained infectious after the filtration. The Ivanovsky reported a minuscule infections agent or toxin capable of passing the filter and may be being produced by the bacterium. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट सम ऑफ द हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी. So सबसे पहले viruses were first recognized as a unique entities which are infectious in the late 19th century. सबसे पहले वायरस को लेट 19th सेंचुरी में एक यूनिक इन्फेक्शियस एंटिटी और एजेंट की तरह देखा गया. ठीक है. उसके बाद इन ईयर 1892 Dmitry Ivanovsky, Russian scientist, reported that tobacco mosaic disease in plant is caused by some filtrable agent and he used a Chamberlain filter to try to isolate the bacteria that caused the tobacco mosaic disease. उसके बाद सन 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि प्लांट में जो टबैको मोज़ेक डिजीज होती है उसके कॉजेटिव एजेंट कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि फिल्टर से पास हो जाते हैं. उनको आइसोलेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे चैम्बरलेन फिल्टर का इस्तेमाल करा और कोशिश करी ताकि वो उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सके जिसकी वजह से टबैको मोज़ेक डिजीज प्लांट्स में होती है. अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को वायरस के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो हर एक जगह यही सोचते थे कि जो भी बीमारियां होती हैं उनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव एजेंट कोई ना कोई बैक्टीरिया है. इसलिए उन्होंने चैम्बरलेन फिल्टर की मदद से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू हिम, जिसकी वजह से प्लांट्स में टबैको मोज़ेक डिजीज होती थी. Moving on, his experiment showed that the crushed leaf extract from the infected tobacco plants remain infectious after filtration. उसके बाद उन्होंने देखा कि जो भी उन्होंने क्रश लीफ एक्सट्रैक्ट को चैम्बरलेन फिल्टर से पास कराया था, उसके बाद भी वो जो फिल्ट्रेट था ना, वो उसमें टबैको मोज़ेक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट अभी भी प्रेजेंट था. इसका मतलब वो फिल्ट्रेट अभी भी इन्फेक्शियस था. Ivanovsky reported a minuscule infectious agent or toxin capable of passing the filter and may be being produced by the bacterium. इसके बाद दिमित्री इवानोव्स्की ने बताया कि कोई बहुत स्मॉल और माइन्यूट इन्फेक्शियस एजेंट और कोई टॉक्सिन है जो कि फिल्टर से पास हो जाता है और शायद ये कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से प्लांट में टबैको मोज़ेक डिजीज होती है. ठीक है. Moving on, in the year 1898, the Martinus Beijerinck proposed that the tobacco mosaic disease is due to a novel type of an infectious agent. Moreover, he realized that the disease could not be due to the toxin, as filtered sap from the infected plant could be used for serial transmission of the disease without the loss of potency. He called it as a contagium vivium fluidium. After that, Lofer and the Frosch identified the first filtrable agent from the animals, the virus of the foot and the mouth disease. After that, the Senrelli discovered the myxoma virus, and it was the first viral pathogen of the laboratory animals like rabbits. हिस्ट्री में आगे बढ़ने पर इन ईयर 1898 द मार्टिनस बेजरनिक proposed that the tobacco mosaic disease is due to some novel type of infectious agent. अब सन 1898 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्टिनस बेजरनिक. उन्होंने बताया कि जो टबैको मोज़ेक डिजीज प्लांट में होती है ना, उसका इन्फेक्शियस एजेंट एक नोवल टाइप का है, बिल्कुल अलग है. ठीक है. मूविंग ऑन, he realized that the disease could not be due to the toxin, as filtered sap from the infected plant could be used for the serial transmission of the disease without the loss of potency, and he called it or named it as a contagium vivium fluidium. अब देखो,
उन्होंने ये रियलाइज करा कि जो डिजीज है ना ये किसी टॉक्सिन की वजह से नहीं होती है, क्योंकि जो भी फिल्टर्ड सैप हम इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम सीरियल ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ पोटेंसी, एंड उन्होंने इसको नाम दिया कंटेजियम विवियम फ्लूडियम। ठीक है, उसके बाद 1898 में दो साइंटिस्ट थे, लोफर एंड द फ्रश। दे आइडेंटिफाइड द फर्स्ट फिल्ट्रेबल एजेंट फ्रॉम द एनिमल्स एंड इट वाज द वायरस ऑफ द फुट एंड माउथ डिजीज। सो लोफर एंड फ्रॉश ने सबसे पहले फुट एंड माउथ डिजीज जो कि एनिमल्स को अफेक्ट करता था उसके वायरस का पता लगाया। ठीक है, मूविंग ऑन, in year 1898 the Centrally discovered the myxoma virus, which was the first viral pathogens of the laboratory animals like rabbits. अब Centrally नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में ही सबसे पहले एक माइक्सोमा वायरस की डिस्कवरी करी जो कि फर्स्ट वायरल पैथोजन था, फर्स्ट ऐसा वायरस था जो लेबोरेटरी एनिमल्स को टारगेट करता था। ठीक है, moving on, in the year 1900, McFadden discovered the African horse sickness virus. In year 1901, the Walter Reed and Carroll discovered the first virus of the human, and it was yellow fever virus. In the year 1901, the Centeni, Lode and Gruber discovered the foul plague virus. In 1903, Remlinger and Riffert Big discovered the rabies virus. And in the same year of 1903, Dishwink and the Dorset discovered the hog cholera virus. After that, in the year 1900, the scientist named McFadden discovered the African horse sickness virus. अब सन 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकफेडन, उन्होंने अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस को डिस्कवर करा। ठीक है, उसके बाद इन द ईयर 1901, द वॉल्टर रीड कैरल डिस्कवर्ड द फर्स्ट वायरस ऑफ द ह्यूमन, दैट इज येलो फीवर वायरस। उसके बाद सन 1901 में वॉल्टर फीड और कैरल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक वायरस का पता लगाया जो कि ह्यूमन को टारगेट करता था एंड जिसका नाम था येलो फीवर वायरस। उसी साल 1901 में there was a scientist named Centeni, Lode and Gruber and they discovered the foul plague virus. इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर किसका डिस्कवरी करी? फाउल प्लेग वायरस की। ठीक है, in the year 1903, the Remlinger and Riffert Bay discovered the rabies virus. 1903 में रेमलिंगर और रिफर्ट वेव नाम के साइंटिस्ट ने रेबीज वायरस की डिस्कवरी करी। ठीक है, मूविंग ऑन, दी शिविंग एंड द डॉर्सेट डिस्कवर्ड द हॉग कोलेरा वायरस। अभी दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दी शिविंटिस एंड डॉर्सेट, इन दोनों ने मिलकर हॉग कोलेरा वायरस की डिस्कवरी करी इन ईयर 1903। ठीक है, moving on, in the year 1908, Ellerman and the Bank discovered the avian leukemia virus, the first cancer-causing virus. In year 1909, the Landsteiner and the Popper discovered the polio virus. In the year 1911, the Peyton Rose discovered the first solid tumor virus, now known as the Rous sarcoma virus, and thus the Rous became the father of the tumor virology. In the year 1915 and the 1917, the Frederick Tourt and the Felix de Herelick discovered the bacteriophages, the agent that caused the disease in the bacteria. In the year 1918, the Spanish influenza pandemic caused by the H1N1 influenza A virus was reported and it was continued from 1918 to the 1920 for 2 years. हिस्ट्री में आगे बढ़ने पे इन द ईयर 1908 द एलरमैन एंड द बैंक डिस्कवर्ड द एवियन ल्यूकीमिया वायरस, द फर्स्ट कैंसर कॉजिंग वायरस। अब देखो, सन 1908 में एलरमैन और बैंक नाम के साइंटिस्ट ने एवियन ल्यूकीमिया वायरस की डिस्कवरी करी जो सबसे पहला कैंसर कॉजिंग वायरस था। ठीक है, उसके बाद इन द ईयर 1909 लैंडस्टीनर एंड द पॉपर डिस्कवर्ड द पोलियो वायरस। सन 1909 में लैंडस्टीनर और पॉपर नाम के साइंटिस्ट ने पोलियो वायरस की डिस्कवरी करी। ठीक है, मूविंग ऑन, इन द ईयर 1911 पीटन रॉस डिस्कवर्ड द फर्स्ट सॉलिड ट्यूमर वायरस जिसको हम आज के डेट पे रॉस सार्कोमा वायरस के नाम से जानते हैं, एंड दस द रॉस बिकम द फादर ऑफ द ट्यूमर वायरोलॉजी। देखो, 1911 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पेटन रॉस, उन्होंने सबसे पहले एक सॉलिड ट्यूमर कॉजिंग वायरस का पता लगाया जिसको हम आज रॉस सार्कोमा वायरस के नाम से जानते हैं, एंड दस
पीटर रॉस को हम फादर ऑफ ट्यूमर वायरोलॉजी से ऑनर करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फादर ऑफ ट्यूमर वायरोलॉजी इज पीटर रॉस। ठीक है, moving on, in the year 1915 and 1917, the Frederick Tuart and the Felix de Herelle discovered the bacteriophages that are the agent that cause the disease in the bacteria. ठीक है, 1915 और 1917 में दो साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक टुआर्ट और फेलिक्स डी हेरेले। उन्होंने बैक्टीरियोफाजेस की डिस्कवरी करी। बैक्टीरियोफाजेस एक ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, moving on, in the year 1918, the Spanish influenza pandemic caused by the H1N1 influenza A virus was reported and it was continued from 1918 to 1920. सन 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया जिसका पॉजिटिव एजेंट था H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस, और ये पेंडेमिक 2 साल तक चला, सन 1918 से लेकर 1920 तक। ठीक है, so that's all for this video. We will meet very soon in the next one.